Good afternoon, student. Myself, Dr. Prem Kumar Chaurasia, working as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering, and today we are going to see Unit 4, or we are going to start a Unit 4, that is Human Factor Engineering. It comes under the subject Industrial Engineering and Ergonomics. You have earlier studied Unit 1, Unit 3 and 2, but in Unit 4 I have divided the Unit 4 in two sections. First is Human Factor Engineering and the second one is Information Theory. In this first section you will get to know about the human factors. What are the human factors which affect the efficiency, which affect the outcome of a plant or a industry or a organization? What are the different kinds of factors which affect the human while working in an organization, and what we can do to minimize the stress on human, and how we can increase their efficiency in order to increase the overall output of an industry or an organization. Basically, in human factor there are several factors which affects the human. First one is we can say the environmental factor. Here the human, that means a worker. How does a worker get affected in an organization, or what are the responsibility of an organization to keep your worker happy? So I was talking about the different kinds of human factor which affects the human in an organization are, first one we can say the environmental factor. Environmental factor, I can say that there are two types of environmental factor. First one is the environment related to the atmospheric condition inside the organization, or second one is the environment, that means how does the people in the organization acts and reacts to each other. So first one was environmental factor. Second one was accidental factor, or we can say the safety measures. What are the different kinds of safety measures are taken in an organization to keep their employee or human safe? Third one is the psychological factor. Psychological factor means what are the different steps or a policy or a measures which are being organized or deployed in an organization to keep their worker stress free, or keep their worker psychological in a good sense. In a psychological factor we can say physical factor also. That means if somebody is not able to do a work efficiently, rather than getting away to that worker, it is better to shift that worker from that workplace to a different workplace. अगर कोई वर्कर सही ढंग से जो दिया हुआ काम नहीं कर पा रहा है तो उसको निकालने से अच्छा है कि उसको किसी दूसरा जॉब या किसी दूसरा वर्क प्लान असाइन कर दिया जाए. तो इस टाइप का फैक्टर क्या रहता है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को वो कम करता है. सो let us start our unit. I have just said you some of the introduction, or gave you some of the introduction or overview of a human factor. So in this unit you will learn about definition and the history of development of human factors engineering. What is human factor engineering, and how does the human factor engineering has developed in the recent past year. Second one, we will be studying about types and characteristics of man and machine systems. What are the types and what are the characteristics, how man and machine system sync with each other, and how does they part a significant role in each other system.
relative capabilities of human being and machine. What are the different capabilities of human beings and what are the different capabilities of machines? Capabilities here means क्षमता. Then the development and use of human factor data, information input and processing. हम देखेंगे कि किस तरह के ह्यूमन फैक्टर्स के डेटा को हम यूज़ करके उसको एज ए इनपुट और उसको प्रोसेस करा के कुछ आउटपुट लिया जा सकता है. दिस द लास्ट वन, ये इसीलिए कि करेंगे हम ताकि जब हमारे पास कुछ डेटा रहता है उस डेटा को अगर हम इनपुट दें और उस इनपुट को प्रोसेस करा के हम अगर कुछ आउटपुट लेते हैं तो डेफिनेटली वी विल हमें कुछ पता पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है. तो उस हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर कर सकते हैं. सेक्शन 2 we will be studying about the information theories, factor affecting the information and the coding and selection of sensory input. What are the different kinds of inputs? So in today's lecture we will be studying about the first section, first topic, that is definition and history of development of human factor engineering. Later lectures or in videos you will be seeing about types and characteristics of man machine system and relative capabilities of human being and machines, development of use of human factors, and in the last video you will be seeing the introduction to the information theories. So now I will start the topic. Human factor engineering. What is human factor engineering? It is nothing, just a study of all the factors that make it easier to do the work in a right way. ऐसे सभी फैक्टर्स और पैरामीटर का स्टडी जो हमारा काम को सही डायरेक्शन पे लेके जाए और इजी बनाए, उसको हम कहते हैं ह्यूमन फैक्टर. यहाँ पे ह्यूमन का मतलब एम्प्लॉयर, जो काम कर रहा है. Sometime we also call human factor as an ergonomics. And what is ergonomics? Ergonomics is the science and the art of fitting the job and workplace to the workers need. ergonomic क्या कहता है? हम ergonomics में क्या करते हैं? ergonomics में हम इस चीज़ का स्टडी करते हैं कि how does a job fit a worker and how does a workplace fit a worker. मतलब जो जॉब हमने किसी वर्कर को दिया है तो वो उसके लिए कैसे फिट है, वो उसमें कितना एफिशिएंट है, और जो वर्क प्लेस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट वर्कर को प्रोवाइड कर रहा है वो उसमें कैसे फिट हो रहा है. सो फिट द जॉब टू द पर्सन rather than making the person fit the job. Here you can see I have written fit the job to a person rather than making the person fit the job. हमें ऑर्गेनाइजेशन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी काम हमने वर्कर को दिया है या वर्कर जो भी काम कर रहा वो उसके लिए फ़िट है. हमें इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए. रादर देन मेकिंग पर्सन फिट द जॉब, हमें अगर वो ढंग से नहीं कर पा रहा है तो हमें उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, हमें उसकी स्किल बढ़ानी चाहिए और हमें उसको उस जॉब के फिट बनाना चाहिए. अगर एम्प्लॉय या वर्कर को असाइन किया हुआ जॉब वो सही ढंग से, सही एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा है और सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो उसको निकालने से अच्छा है कि हम उस पर्सन की स्किल को बढ़ाएं, उस पर्सन को ट्रेनिंग दें और उसको उस जॉब के लिए प्रिपेयर करें. सो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग द वर्क प्लेस एंड द इक्विपमेंट इन इट टू एकोमोडेट इट. ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग हम इसमें ये सीखते हैं कि हाउ शुड बी द लेआउट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वर्क प्लेस का इक्विपमेंट कहाँ पे रखा होना चाहिए, कैसे रखा होना चाहिए, ताकि वो वर्कर को एफिशिएंसी बढ़ाए, वर्कर की स्ट्रेस कम करे, वर्कर को अच्छा एनवायरनमेंट दे, है ना. सो हियर इन दिस फिगर यू कैन से दैट you can see if some job is provided or some work is assigned to a worker, his performance and his well-being both are a very necessary concern. हमें उसकी परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना चाहिए और उसकी वेल बीइंग कि वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसका
वो मेंटली सही है, फिज़िकली सही है, उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस तो नहीं है, वो किसी परेशानी में तो नहीं है, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये हमारा बैलेंस्ड है, दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग in its optimum position. So the performance of the worker and worker की well-being, that means उसकी mentally illness, physically illness, stress, environment सही है कि नहीं, उसको हम सही वो जो चीज़ चाहता है उसको वर्क प्लेस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। Now next, वाई इज़ इट नीडेड, हमें ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग की क्यों ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। अगर ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग सही नहीं है, अगर एम्प्लॉयर हमारा सही तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो अगर स्ट्रेस में है, वो अगर फिजिकली इल है, वो अगर मेंटली इल है, तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इंजरी एंड इल हेल्थ ड्यू टू पुअर अर्गोनॉमिक्स। अगर ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग नहीं रहेगा तो हमारा सही ढंग से हम प्लांट का हमारा डिज़ाइन नहीं होगा, और सही तरीके से अगर हमने प्लांट को डिज़ाइन नहीं किया है, वर्क प्लेस को डिज़ाइन नहीं किया है, सही एनवायरनमेंट नहीं दिया है, तो डेफिनेटली आवर वर्कर इज़ गोइंग टू सफ़र अ पुअर हेल्थ। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग अगर सही है तो इट विल रिड्यूस द सिकनेस एंड एब्सेंस ऑब्लिक कॉस्ट। हम देखेंगे आगे कि ये कॉस्ट पे कैसे इफेक्ट करता है। इट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड आउटपुट। अगर हमारा वर्कर सही है, इफ़ एवरीबडी इज गुड इन अ वर्क प्लेस, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट एट रिस्क, इट इज़ द ह्यूमन फैक्ट, इट इज़ द ट्रूथ फैक्ट कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय रिस्क में है। इट इज़ नॉट जस्ट हैवी और फिजिकल जॉब डेट कॉसेस इंजरी। ज़रूरी नहीं है कि कुछ हैवी और फिजिकल जॉब के कारण ही इंजरी हो सकता है। हैवी जॉब्स दैट मीन्स हम उसको कुछ भारी भरकम चीज़ रोज़ उठवाते हैं, उस कारण उसको इंजरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। फिजिकल जॉब, हैवी एंड फिजिकल जॉब्स का मतलब यही हो गया कि हम किसी एक वर्कर को बोल दिए कि 50 किलो का बोरा रोज़ सुबह शाम 5-5 उठा के रखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके कारण ही उसको इंजरी हो सकता है। आई विल एक्सप्लेन यू बाई केस। लेट देयर इज़ वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है जो 50 किलो का बोरा रोज़ सुबह शाम 5-5 उठा करके रखता है, और एक एम्प्लॉय है रोज़ 5 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठता है। जो बोरा उठाता है उसके पास हैवी जॉब है और फिजिकल जॉब है, जो कंप्यूटर के सामने बैठा है उसके पास लाइटर जॉब है और कोई फिजिकल जॉब नहीं है, उसके पास कंप्यूटेशनल जॉब है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो बोरा उठा रहा है उसको इंजरी होगा और जो कंप्यूटर के सामने बैठा है उसको इंजरी नहीं होगा। दोनों को इंजरी हो सकता है, दोनों ही इंजरी फेस कर सकते हैं। फिजिकल जॉब और जो हैवी जॉब वाला जो बोरा उठा रहा है, हो सकता है कि उसको बैक पेन हो, शोल्डर इंजरी हो, बट जो कंप्यूटर के सामने बैठा हो सकता है उसको आंखों में स्ट्रेस की इंजरी हो, उसकी रिस्ट में इंजरी आ जाए, रिस्ट में स्ट्रेस हो जाए, उसको नर्वस में उसको हेडेक हो। तो दिस आर ऑल द कॉज ऑफ इंजरी। सो ह्यूमन फैक्टर इज़ वेरी मच एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी। सो नाउ नेक्स्ट, see this is the hierarchy of human factor. So if an employee, mainly employee is a human being, if he is a human being, it has an emotions, उसके पास emotions है। हम ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा उनके emotions की वैल्यू रखनी चाहिए। there is an preference दैट मीन्स इफ़ somebody इज सीनियर तो उसको पहले प्रीफर करना चाहिए। देयर इज यूजिबिलिटी, देयर शुड बी एन ऑप्टिमम यूजेबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स और अ एम्प्लॉयर। उसकी यूज़ कैसे, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कैसा उसका इफ़ेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवनेस, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात और सबसे ब्रॉडर वे, सबसे ब्रॉडर उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। इफ़ ह्यूमन फैक्टर्स किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ डज द अपर लेवल अथॉरिटी और मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द HR पॉलिसी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क
प्लान लेआउट इज़ बीइंग असाइंड बाय अ मैनेजमेंट सिस्टम टू अ ह्यूमन फैक्टर, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। टास्क वर्क एंड प्रोसेस, उसे जो टास्क दिया गया है और वो किस तरीके से काम कर रहा है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसे कैसा एनवायरनमेंट दिया गया है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ उसको किस बात कैसी दी गई है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसको ऑटो कैड की डिज़ाइन, उसको ऑटो कैड में कुछ डिज़ाइन करना है और हमने उसको सिस्टम ही नहीं दिया है, कंप्यूटर नहीं दिया है और उसको इक्विपमेंट फैसिलिटी नहीं दी गई है, तो वो उसको कभी डिज़ाइन ही नहीं कर पाएगा। अगर वो डिज़ाइन नहीं कर पाया, अगर वो उसी अगर सिस्टम और कंप्यूटर के बीचों में ही अगर वो जूझता रह गया, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू सफ़र अ डिप्रेशन और अ फ्रस्ट्रेशन, है ना। तो और उसका एनवायरनमेंट, कोई चीज़ अगर वही एम्प्लॉय अगर ऑटो कैड में डिज़ाइनिंग कर रहा है और वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है और उसको एनवायरनमेंट ऐसा है कि धूप में बैठा दिया गया है जहाँ का टेम्परेचर 40 to 45 है, तो वो वहाँ पे इफेक्टिव अपना आउटपुट दे ही नहीं पाएगा, अपना 100% दे ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए एनवायरनमेंट कैसा है उसके लिए ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, so now this was the history. Now we will be taking about some of the history because it is an part of your syllabus. Earlier in 1940s, engineer made machines without considering the human factor. पहले भी machines बनते थे, तो लेकिन उस समय पहले 1940s के पहले ह्यूमन फैक्टर को कंसिडर नहीं करते थे इंजीनियर्स मशीन बनाने पे। फॉर एन एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट इन अर्लियर, अभी हमारे पास स्विच देखें, स्विच अगर हम नीचे की ओर दबाएं दैट इज़ ऑन, स्विच अगर हम ऊपर की तरफ दबाएं दैट इज़ ऑफ। तो ये हमारी सहूलियत के हिसाब से है। दिस इज़ एन ह्यूमन फैक्टर डिज़ाइन। कैसे ह्यूमन फैक्टर यहाँ रोल प्ले किया। अब 1940s के पहले क्या होता था कि इफ़ ये ऑर्गेनाइजेशन है X, यहाँ पे स्विच को नीचे किए तो ऑन होता था मशीन, स्विच ऊपर किए तो मशीन ऑफ होता था। बट लेट देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन Y, वहाँ पे क्या था कि स्विच ऊपर करो तो ऑन होता था, स्विच नीचे करो तो ऑफ होता था, है ना। देयर वर नो सिंक, ऐसा कोई सिंक नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई ह्यूमन फैक्टर ऐसा डिज़ाइन नहीं था, कोई ऐसा पॉलिसी नहीं था। तो अगर यहाँ का एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय अगर वाई ऑर्गेनाइजेशन में गया था तो एक्स एम्प्लॉय ये सीखा था कि मेरे पास तो मैंने इसके पहले जिस कंपनी में काम किया हूँ वहाँ पे नीचे दबाने से ऑन होता था, ऊपर दबाने से ऑफ होता था। लेकिन वाई में क्या है, ऊपर दबाने से ऑन होता है, नीचे दबाने से ऑफ होता है। यहाँ पे उसको उल्टा हो गया, तो इट कॉज ए मेजर फेलियर, इट कॉज एन एक्सीडेंट। तो 1940s के बाद से बहुत से स्टैंडर्ड्स आए, बहुत से रिसर्च हुई, तो उसके बाद इंजीनियरिंग ह्यूमन फैक्टर का डेवलपमेंट हुआ कि हर जगह पे एक स्टैंडर्ड फॉलो होगा, जहाँ पे स्विच अगर नीचे दबाए दैट मीन्स ऑन, स्विच अगर ऊपर दबाए दैट मीन्स ऑफ। वर्ल्ड वॉर 2 के व्हेन देयर वाज अ वर्ल्ड वॉर 2 बहुत सारे वेपन्स यूज़ हुए थे बट दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। वो वेपन चलाने में ही बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी, एज द रिसर्च सेज, बिकॉज दे वर द वेपन वर डिजाइंड by not considering any human factor. Poor design resulted in many accidents. You will get such an example in internet. Very number of various and number of examples in the net. But now, as a human factor is considered, human factor research resulted in safer automobiles, including redesign of headlights, brakes, lights, and tinted windows. पहले के आप ज़्यादा दूर ना जाएँ, पहले बाइक में पहले आज से 15-20 साल पहले देख सकते थे तो पहले हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं आता था। आजकल के बाइक्स में हाइड्रोलिक ब्रेक आता है। ह्यूमन फैक्टर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया, ह्यूमन फैक्टर को कंसिडर किया गया। पहले कार के सामने वो बैलून नहीं आता था कि अगर कहीं हिट करे कार तो बैलून बाहर निकल के आए और तो इंसान का एक्सीडेंटल जो कॉज हो वो कम हो। आजकल वो बाहर आता है। तो दिस इज़ द सम ऑफ द हिस्ट्री। सी अब ये कैसे ये हमारे कॉस्ट को इफ़ेक्ट करता है। सभी वर्कर जॉब परफॉर्म करते हैं अपने फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। जो टास्क इक्विपमेंट दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए, टूल्स एंड वर्किंग एनवायरनमेंट को रखते हुए, टू डिज़ाइन वर्क सिस्टम डेट आर सेफ, फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। ह्यूमन फैक्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ऐसा एनवायरनमेंट वर्क सिस्टम क्रिएट करना है जो कि सेफ़ हो, फ्लेक्सिबल हो, एफिशिएंट हो और प्रोडक्टिव हो। सो देखिए दिस फिगर शोज़ the MSDs. I mean this figure shows the cut out of the employer
और एम्प्लॉयर किस कारण से इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन येलो कलर यू कैन सी कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए पहली बार as in mechanical engineering we have never used such we have never used that what we called mechanical engineering छोड़िए, computer science engineer has never used a hammer. If he or she goes to an organization and the organization gives him or her a hammer, how he will use it? अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कभी अपने लाइफ में एक बार भी हैमर का यूज़ नहीं किया है, अगर वो किसी इंडस्ट्री में जाता है, उसको हैमर पकड़ा दिया जाता है, तो वो वहाँ काम कैसे करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स। उसको जो ऑब्जेक्ट्स और जो टूल वहाँ दिया गया है उससे उसके साथ कॉन्टैक्ट और उसके साथ बिहेवियर कैसा है। सेकेंड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इशूज़। थर्ड वन इज़ फॉल्स। बहुत बार हम गिरते हैं, बहुत बार चीज़ें गिरती है, उस कारण हमें चोट लगता है, उस कारण हमें स्ट्रेस होता है। बहुत बार हमें ऑब्जेक्ट सही से नहीं मिलता, हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उस कारण स्ट्रेस होता है, उस कारण हम ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है वो इफ़ेक्ट होता है ना। वर्क प्लेस वायलेंस, कभी कभी हमारे वर्क प्लेस में हड़ताल होती है, इंटरनल डिस्प्यूट हो जाता है, लेबर आपस में लड़ लेते हैं, तो उस कारण इंडस्ट्री सही तरीके से ऑप्टिमम एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाता है। एंड द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ MSD, मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के कारण मेजर टाइम हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉल शॉर्ट रहता है अपने ऑप्टिमम आउटपुट से। उसको जितना आउटपुट देना है उससे मेजर टाइम वो किस कारण नहीं दे पाता है? क्योंकि वो वर्कर में मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अब ये मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑफ द बैक के पोर्शन में हो सकता है, आपको मतलब पीठ की रीढ़ की हड्डी में किसी को दर्द, किसी को शोल्डर में दर्द, किसी को गले में दर्द, किसी को हिप में दर्द, किसी को एंकल में दर्द, इस कारण है। यहाँ पे MSDs ऑफ बैक, अपर एक्सट्रीमिटी MSDs मतलब हमारा जो कमर के ऊपर जितने भी MSDs होते हैं, दैट इज़ मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, उसको बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटी MSDs। एक्सट्रीमिटी मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, उस कारण। और एवरेज क्लेम, देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे 0, 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 जो है ये क्लेम है, और ये है एवरेज कॉस्ट पर क्लेम इन डॉलर। MSDs ऑफ द बैक, मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑफ द बैक, इसके कारण एम्प्लॉय क्या किया है, कंपनी से इतना क्लेम लिया है, इतना पैसा कंपनी वालों ने वर्कर को दिया है। क्यों दिया है? बिकॉज ऑफ MSDs ऑफ बैक। हर एक कंपनी में HR पॉलिसी में होता है मेडिकल इंसेंटिव, वो मेडिकल हर्जाना जो कि काम करते वक्त होता है या उसे ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उस कारण। तो मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के कारण कंपनी 8,000 USD एवरेज कॉस्ट पर क्लेम एक बंदे को इतना खर्च करती है। एक्सट्रीमिटी के कारण इतना खर्च करती है। एवरेज क्लेम कितना हो गया? करीबन 4,000 से 4,500 के बीच में, 4,000 से $4,500 एवरेज कॉस्ट पर क्लेम। इतना कंपनी किस पे पैसा वेस्ट करती है, या बोलो किस पे पैसा वो उसको ग्रांट करना पड़ता है? ओनली ड्यू टू MSDs। अब देखिए यहाँ पे कंपनी को डबल लॉस हो रहा है। एक तो MSDs के कारण, मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण उसकी एफिशिएंसी, उसकी आउटपुट और प्रोडक्शन भी नहीं हो पाया, और उस प्रोडक्शन के अगेंस्ट में उसको इतना एवरेज क्लेम भी देना पड़ रहा है। तो देयर इज डबल लॉस टू द कंपनी। इसीलिए ह्यूमन इंजीनियरिंग फैक्टर बहुत ज़रूरी है एंड इट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल। सी दिस आर द सम कॉमन टाइप ऑफ MSDs। रेगुलर हम माउस यूज़ करते हैं, उस कारण हमारे रिस्ट में स्ट्रेस आता है। रेगुलर हम लैपटॉप्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, उस कारण आँखों में स्ट्रेस आता है। हमारे हेडेक होता है, शोल्डर में एक होता है, बैक में प्रॉब्लम होता है, स्पाइनल प्रॉब्लम। दिस आर द सम कॉमन टाइप्स एंड दिस आर नॉट ऑल द एक्सट्रीमिटी वन। सो सम कॉमन टाइप के MSDs हैं। द वर्कर एंड द ऑर्गेनॉमिक्स क्यों होते हैं? वर्कर और ergonomics के बीच में सिमिलरिटी होना चाहिए। 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव, मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ ए टास्क टू ए इंडिविजुअल। वर्कर को जो काम दिया गया है
जो टास्क दिया गया है उसी के हिसाब से उसको एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस देना होता है। ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन ऑफ टास्क टू द इंडिविजुअल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, इल हेल्थ एंड डिस्कम्फर्ट। टास्क दिया गया है तो उसके लिए उसका एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस को ऐसा डिज़ाइन करो कि हमारा ह्यूमन को या वर्कर को कम चांस हो इंजरी का, इल हेल्थ का और डिस्कम्फर्ट का। यहाँ पे देखिए हम जनरली हम ऐसे ही बैठते हैं किसी भी सिस्टम के सामने, हमारा नेक ट्विस्टेड रहता है, मॉनिटर पोजीशन सही से नहीं रहता है, कीबोर्ड का एंगल अलग रहता है, हमारा माउस का पकड़ने का तरीका सही नहीं रहता है, हमारा बैक रेस्ट पर सपोर्ट नहीं होता है, हम कुशनिंग पे अपना एंकल को दबा के रखते हैं। जनरली हम जब लैंप को लाइटिंग करते हैं तो इम्प्रॉपर पोजीशनिंग होती है, तो ये सब गलत तरीका है। एंड दिस इज़ ऑल द थिंग्स व्हाट वी फॉलो इन आवर डेली रूटीन। इस कारण हमारा क्या होता है, यही होता है डेली रूटीन करते 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 ये मस्कुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर को हम फेस करते हैं। मीन्स डूइंग समथिंग टू फ्रीक्वेंटली विदाउट ब्रेक। हम क्या करते हैं, कभी कभी सिस्टम के सामने या कोई भी काम कंटिन्यू करते रहते हैं 2-3 घंटे तक, तो वो नहीं करना चाहिए। वर्किंग इन ऑकवर्ड पोजीशन, हमें ऑकवर्ड पोजीशन में भी काम नहीं करना चाहिए। वी शुड बी सिट इन रिलैक्स्ड पोजीशन और तभी हमें काम करना चाहिए। वर्क स्टेशन इज़ नॉट फिट, सही तरीके से वर्क स्टेशन हमारे आँखों में पोजीशन नहीं होता है। वर्किंग अंडर डिस्कम्फर्ट जोन, कभी कभी क्या होता है हम डिस्कम्फर्ट जोन पे भी बैठ करके काम करते हैं। हो सकता है कि हमारा सीटिंग जिस पे हम बैठते हैं वो अप एंड डाउन हो, तो उस कारण भी हमें तकलीफ हो सकती है। दिस इज़ द राइट पोजीशन। वी शुड बी हेड अप करके बैठना चाहिए। देयर शुड बी नो ट्विस्टेड नेक, शोल्डर रिलैक्स्ड होना चाहिए, बैक इरेक्ट होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए, हमारा मॉनिटर एकदम आँखों के लेवल में होना चाहिए, फिट हमें फुट रेस्ट पे रखना चाहिए। दिस इज़ द गुड ergonomics फॉर द वर्कर इफ़ ही और शी इज़ वर्किंग इन अ वर्क प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ वर्क स्टेशन। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज ईच वर्कर इज़ यूनिक। सभी वर्कर यूनिक है अपने अपने इंडिविजुअल में। some in size and shape, in age and gender, in race and language, in physical ability, in experience. So it is very difficult to optimize a task or a workplace to suit everyone. सभी वर्कर के क्या होता है, अपनी उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो फिजिकली हो सकती है, उनकी मेंटेलिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड a satisfactory workplace that fits to an individual. So every organization tries to give a workplace or an environment based on human factor, but it is not up to 100% every time. See, this is the one of the research says with each and every length. See, the distance between a eye on a laptop or at a workshop should be 18 to 24 inch. Keyboard, while using mouse, our hand should be in straight, our wrist should be straight, the neck, the shoulder and the hip joint should be in straight. Chair should be an adjustable. Chair height slightly more than 90 degrees feet. Mouse adjacent होना चाहिए. Keyboard same height होना चाहिए अपने थाइस और रिस्ट के. डॉक्यूमेंट होल्डर सही जगह पर प्लेस होना चाहिए। और किसी भी काम को हमें कंटिन्यू 30 मिनट्स या 40 मिनट्स तक नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक ए रेस्ट ऑफ 2 मिनट्स to 5 मिनट्स इन बिटवीन द वर्क। 7 की पॉइंट्स फॉर द ऑफिस वर्कर। अपर बैक की पॉइंट्स, कहाँ कहाँ उन्हें ध्यान रखना है कि मेरा ये सब चीज़ें सही जगह पे सही पोजीशन होना चाहिए। अपर बैक, लोअर बैक, सिटिंग बोन्स, थाई बिहाइंड द नी, area behind the knee, feet, our wrist and arm, the angle between the work station and the eye, it should be 0 to 20 degree. मिनिमम बेंडिंग होना चाहिए आर्म्स में। एरिया बिहाइंड द नी जो होना चाहिए, सीट पैंट को टच नहीं करना चाहिए। फीट हमेशा फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए, फ्लोर रेस्ट पे रखना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, दैट मीन्स आवर सीटिंग शुड नॉट बी अप एंड डाउन। सीटिंग बोन्स पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लोअर बैक हमारा इरेक्ट होना चाहिए और कहीं से सपोर्टेड होना चाहिए। अपर बैक में शोल्डर हमारा रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए।
So in this lecture, I will conclude here itself. In the next lecture, we will be seeing about in the next topic, that is types and characteristics of man-machine system and relative capabilities. I hope you will watch this video. You will learn something about the ergonomics and human factor engineering. And this is not only just us to learn or to study. ये सिर्फ पढ़ने के लिए और जस्ट टू राइट एन एग्ज़ाम के लिए लेक्चर नहीं है. दिस ऑल यू नीड टू अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ, in your daily life, so that in future you will not face any kind of MSDs, that is muscular stress disorder, that will keep you healthy. Wherever you will go, you will give your 100% in the organization or a company. You will work better and you will get a better workplace if you will apply a human factor over in your organization. You will be happy. So today I will conclude it here. In next lecture we will come up with some more interesting topics. Stay happy, stay safe. Thank you.